online session. Hope you all are fine and having well. We start today's session about the hydropower development in Pakistan. In previous session, we was discussed about the power generation which is produced from hydropower station, which is known as the power generation through dam of reservoir. So the concept we already discussed in our previous session, and we further continue the session with our previous prospects. Major hydroelectric power station of the world. So we all know about Three Gorges Dam, which is made by the country China in the year 2019, having the capacity 22,500 megawatts. The capacity of overall one dam, which is the demand of Pakistan of one day. Further, Baku, Brazil in 1984 to 2003 from generation to end at 14,000 megawatt. These are the major power station of hydroelectric power station in all over the world which produce the major electrical part, and the country worldwide produce electricity by these dams. Uri in Venezuela in 1986, further having the capacity of 10,200 megawatt. And this column is the maximum annual electricity production terawatt per hour. The generation in the particular unit terawatt per hour. Grand Coulee in USA 1942 to 1980 having the capacity 6,800 megawatt. Now we have as Pakistan two major dams which are highlighted in all over the world are the called the Bela Dam country in Pakistan, which is completion year 1976, having the total capacity 3,478 megawatt, and it's the largest capacity of Tarbela, which we produce electricity by hydroelectric power station in Pakistan. Further, Mangla Dam, which is also in Pakistan, in 1967, having the total capacity of 1,000 megawatt. So, electricity further produced by statistics of megawatt. Afterwards, we moving towards the aspect related to the hydro development in Pakistan. In green operation, green highlighted blocks are the power generation units which are in operation now these days, and I think I need to zoom this slide, and here you go. Nalthar 1 at the capacity of 18 megawatt. This one is the one of the dam which is near to Gilgit. Further, the operation dam is Dargi, 20 megawatt. Japan dam, that is 20 megawatt. Tarbela, we already seen the concept, 3,478 megawatt. Varsik dam, one of the major dam in Pakistan, which is in run of the river. काबुल के दरिया से बहता हुआ जो पानी आता है उसको रिजर्वायर ऑफ डैम में जमा किया जाता है, और बहते हुए दरिया यानी रन ऑफ द रिवर के जरिए से उसको फ्लो करवाया जाता है, दैट बी कॉल्ड अ वार्षिक डैम. Tarbela we already seen, Dargi, Japan, Jagran dam, that is 30 megawatt produce electricity. And further,
Ghazi Brodra Dam, that is 1450 megawatt. Ghazi Brodra Dam. Warsak and Mangla Dam already done the Karbela. After that, Mangla Dam was on 1000 megawatt. So this one is one of the major dam as well. We called a Chashma power plant. Chashma Dam, that is 184 megawatt. It is in Miyawali. So afterwards, under construction dams, which are highlighted by the blue block, which is Jinnah Dam, 96 megawatt, Gomal Zam 18 megawatt. These are the small dams. मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक डैम जो हम बनाने चाहिए बहुत बड़े नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इन डैम्स का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन ज़लज़ला प्रूफ नहीं हो पाता, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकते हैं, क्योंकि अमूमन डैम्स जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी सिलसिलों में बनाए जाते हैं, जहाँ पर बहते हुए दरिया का पानी कलेक्ट किया जाता है रिजर्वायर की सूरत में, या फिर रन ऑफ द रिवर के ऊपर आप इसको चलाते हैं। लेकिन अगर छोटे डैम हो जैसे 18 मेगावाट की कैपेसिटी, तकरीबन 100 मेगावाट, तो ये सस्टेनेबल कैपेसिटी है। लेकिन बहुत बड़े डैम बनाना कोई अच्छा सूटेबल सोल्यूशन नहीं है। तो इसके अलावा इन ऑपरेशन ब्लू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मालाकंड 3, ये भी हमारा एक डैम है जो कि इन प्रोसेस है। खान पावर अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी। और नीलम झेलम, ये भी एक डैम है हमारा, ये इसके ऊपर सियासत भी बहुत हुई है नीलम झेलम के ऊपर। फर्दर खान खावर की बात हो गई है, दुबैर खावर भी एक हमारा डैम है, और इसके अलावा ये हमारे डैम है। और सतपारा, ये भी एक डैम है हमारे, जो कि इंडस रिवर से होता हुआ हमारा चल रहा है। अच्छा, इंडस रिवर हमारा दरिया सिंध होता है, जो कि दरियाओं से, झीलों से जो पानी कलेक्ट होते हुए दरिया सिंध में जो बहता हुआ आ रहा होता है। ट्रेजेक्ट्री लास्ट टाइम मैंने डिस्कस करी हुई थी कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ रिवर क्या है, इसके ऊपर ही बात की थी। तो ये जो आप ब्लू से देख रहे हैं ये इंडस रिवर है, दरिया सिंध है, जिसके इर्द गिर्द हमारे डैम्स बने हुए हैं, जिससे पानी डैम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अनाउंस बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो डैम जो कि अनाउंस तो कर दिए हैं, लेकिन अब उसके ऊपर काम कितना हुआ, तो वो कौन कौन से डैम जो कि अनाउंस किए हैं, नीचे से शुरू करते हैं। खुर्रम टंगी, ये वन है। कालाबाग डैम, बहुत बातें हो गई हैं इसके ऊपर। और जिना डैम के साथ ही तकरीबन है ये वन ऑफ द सीरीज में। कालाबाग डैम जो कि 3600 मेगावाट का एक डैम है। Okay, further we continue the session about the announced dam, which is announced by the President of Pakistan. मुंदर डैम जो कि 740 मेगावाट का है, हैविंग द कैपेसिटी। एंड फर्दर हमारे वो कौन से मजीद डैम है जो कि अनाउंस तो हो चुके हैं। दियामीर बादशाह डैम, एक मोहम्मद डैम भी है, एक दियामीर बादशाह डैम है, ये भी अनाउंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हो चुका था, हैविंग द कैपेसिटी 4500 मेगावाट। Up till now, any one of you have any kind of question regarding today's session, please feel free to discuss. I will answer the kind of question, resolve your queries. If you have the kind of question, please feel free to discuss. Otherwise, you mute your mic right now. सर ये कालाबाग पे काम स्टार्ट हो गया है कि अभी होगा? नहीं हुआ, आगे होगा नहीं होगा इसका तो आइडिया नहीं है, क्योंकि कालाबाग पे बहुत बातें हो गई हैं, तो इसलिए हम इस पे बात ना करें तो बेहतर है। तो इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है अभी, डिस्कशन तो जारी है, लेकिन कोई रिजल्ट के ऊपर नहीं आए हैं हम। जी, इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सर। ओके जी, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो जो रेड से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किए हुए हैं डैम, जो रेड हाईलाइटेड ब्लॉक्स हैं, मैंने वो बता दिए हैं आप लोगों को। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं।
फर्दर फिजिबिलिटी एंड डिटेल्ड डिजाइन जो इन हैंड जो है, अब वो हमारे डैम जो है जो कि ब्लैक से रिप्रेजेंटेड है। एक है जी कोहाला। कोहाला, ये कोहाला की हिस्ट्री किसी को पता है? कोहाला के हवाले से क्या है कोहाला? कोई बताएगा? कोहाला एक लेबोरेटरी का नाम है, असल में उस इलाके का नाम है, लेकिन और इलाके से कोहाला लेबोरेटरी हमारी होती है। जब एटॉमिक बॉम्ब की डेवलपमेंट हो रही थी पाकिस्तान में, तो बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट थे उससे रिलेटेड, और बहुत सारे जो फर्नेस एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट, वो सारे के सारा कोहाला लेबोरेटरीज में हो रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कोहाला के अंदर हो रही थी। तो उससे रिलेटेड एक डैम मंसूब किया गया जो कि कोहाला डैम है। ये इन हैंड है अभी, लेकिन इसके ऊपर कोई खातर हाँ प्रोग्रेस नहीं हुई है। थाकोर्ट एक भी फर्दर डैम है। पट्टान, फर्दर प्लेस वैली, स्पेटगा एंड दासू डैम। दासू और बाशा डैम के बारे में तो आपको पता ही है। ये दासू डैम जो है इन हैंड प्रोसेस में है, 4000 मेगावाट के अंदर है। क्याल, कोलिन, कोल एंड लावी। फर्दर अगर हम ऊपर के हिस्से की तरफ आते हैं जो कि स्कर्दू की तरफ वाले इलाके हैं हमारे, तो पंधर डैम, इसकी भी बात अक्सर होती रहती है। और बंजी, यल्बो, हारको और बासु। तो दासू और बासु डैम के बारे में भी काफ़ी हद तक आपको डिस्कशन सुनने हुए मीडिया में मिलती होगी। लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम, जो कि प्रोजेक्ट अंडर PPIB के हैं। तो वो हमारे पिंक कलर से रिप्रेजेंट हुए हैं। ये डैम जो है जस्ट अंडर प्रोजेक्ट हैं, अभी इनके लिए फंड एलोकेट नहीं हुए हैं जो कि आने वाले कभी बन जाएंगे। इनमें न्यू बोंग है, राजधानी, गुलपुर, कोटली, सहरा, चकोटी, हाटन, इरगीगल, मेहल, आज़ाद पट्टान, कुरोद, और इसके अलावा फर्दर हमारी सूखी किनारी, वेटरन, मदियन, शारमल एंड, और इस तरह के जो पिंक कलर से रिप्रेजेंटेड हैं, ये सारे वो डैम है जो कि इनके लिए फंड एलोकेट नहीं हुए हैं। ये PPIB बोर्ड के अंडर सुपरविजन है, और ये सेंट्रल रीजन ऑफ पाकिस्तान में मेजॉरिटी डैम है। बाकी जो बॉटम रीजन है उसमें भी ये है, उसके मुताबिक ये फंड एलोकेशन उसके मुताबिक ये चीज़ हुई भी है। अच्छा, फर्दर इसके बाद फिर हमने डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है उनके ऊपर। यहाँ तक कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछ लें। तो फर्दर लास्ट हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान के हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है, जैसे इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर जो दरिया सिंध है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 37,780 मेगावाट की पावर जनरेशन कर सकता है। इसके अलावा जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर यानी इर्द गिर्द के जो इलाके इंडस रिवर्स के नॉर्दर्न एरियाज हैं ऑफ NWFP, तो वो भी यानी KPK से रिलेटेड, उसके इर्द गिर्द के जो पोटेंशियल है इंडस रिवर से रिलेटेड, वो भी आपका 6006 मेगावाट तक है, जो इलेक्ट्रिसिटी डैम ऑफ रिजर्वायर के जरिए प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा जी, फर्दर इसके अलावा जो नीलम जहलम, कुनहार रिवर, नीलम रिवर, इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इससे इस तरह के रिलेटेड एस्पेक्ट हैं। सो इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी जो कि 1960 से होती हुई आ रही है, जिनके अंदर हमारे 6 दरिया आते हैं, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा इनके नाम, और हमें रटवाए भी जाते हैं इनके नाम। तो इनसे ये ट्रिब्यूटरी कहलाती है डैम की। कुनहार रिवर, इसका पोटेंशियल, नीलम रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, पुंछ रिवर,
पुंछ रिवर फर्दर जो हमारा है वो तकरीबन पोटेंशियल रखता है 400 मेगावाट का। फर्दर जो है सवात रिवर जो हमारा है इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है उनके इर्द गिर्द की जो पोटेंशियल है, चित्राल रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, स्कीम बिलो जो कि 50 मेगावाट से रिलेटेड एक्टिविटीज उनका भी पोटेंशियल है, और जो फर्दर जो स्कीम बिलो 50 मेगावाट ऑन कैनाल सिस्टम के जरिए जो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं उनका पोटेंशियल भी 408 है। और ये टोटल मिला के जो पावर जनरेशन मेगावाट में हो सकती है पाकिस्तान के इवन दरियाओं से और दीगर कैनाल सिस्टम के जरिए से, तो वो जो सिर्फ डैम के जरिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है तो वो आपकी 56,721 megawatt है, that Pakistan have the potential to produce electricity by these rivers canal systems in most of the areas. फर्दर हमने ये डिस्कशन के बाद जो मंगला डैम डिस्कस की थी, तरबेला डैम डिस्कस किया था जी। इंसेंटिव्स, इंडिकेटिव कॉस्ट, बेनिफिट एंड एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑफ डैम प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे हैं उनके ऊपर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से उससे रिलेटेड हो सकते हैं, उन पे डिस्कशन हम करेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट जो हमारी होती है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैपिटल कॉस्ट जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड करनी होती है वो ज़रूरी है। रीसेटलमेंट कॉस्ट, environmental mitigation, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्यूचर डीकमीशनिंग कॉस्ट, ये सारी वो इम्पैक्ट्स हैं जो कि हम तफसील से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो डिस्कस कर लें। क्लियर है सर। ओके, इफ नो काइंड ऑफ क्वेश्चन दी फर्दर कंटिन्यू सेशन। कैपिटल कॉस्ट जो हमारी होती है कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल और जितने भी हमारे मटेरियल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उनमें सरिये हैं और दीगर जो सीमेंट कॉस्ट होती है वो इन्वॉल्व होती है, जो कि सीमेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारी फाउंडेशंस बनती है उसकी, और स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया जाता है उसका कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रीसेटलमेंट कॉस्ट हमारी वो होती है कि वो लोग जो कि इर्द गिर्द के डैम के, इसको इस तरह समझेंगे हमारा एक बहता हुआ दरिया है, ठीक है, दरिया सिंध है ये बहता हुआ आ रहा है तरबेला डैम से, कालाबाग डैम, चश्मा डैम, तमसू डैम, और ये गुड्डू बैराज के अंदर आके फिर मिल जाता है। अब इसके इर्द गिर्द जो है ना, जब डैम दरिया सिंध बह रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो हैं वो आबादी लगा के बैठ जाते हैं। ये बहता हुआ पानी है, ताज़ा पानी, फ्रेश पानी है, और ये होता हुआ आ रहा है, तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी आबादियाँ मौजूद होती हैं, रेस्टोरेंट्स हो जाते हैं और बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो कि खुल जाती हैं। अब इन लोकेलिटीज के मुताबिक पानी के ऊपर इनका हक भी होता है, क्योंकि किसी की मिल्कियत नहीं है उसूलन, तो हुकूमत की मिल्कियत होती है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ पे आबाद हो जाते हैं तो उनको रीसेटलमेंट करनी होती है। अब ये रीसेटलमेंट कॉस्ट जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी हुकूमत के लिए और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उन सबको आपने रीसेटलमेंट देनी होती है और उनको एक अच्छी कीमत देनी होती है उनके हाउस की, उनके उस प्लॉट की अगर उन्होंने वहाँ लिया है तो उसकी शॉप की, और दीगर जितने भी चीज़ें हैं उनकी एक रीसेटलमेंट कॉस्ट आपको उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी जैसे आप डिमोलिशिंग करते हैं इलाकों को, गुज्जर नाले को, तो रीसेटलमेंट आपको देने की ज़रूरत होगी अगर वो इलाके आपके लीज है। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लें। क्लियर है सर। इन्वायरमेंटल जो मिटिगेशन होती है, यानी कि आप जो डैम इन्वेंट वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, या रन ऑफ द रिवर के पैरेलल में अपना एक डैम का पाथ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इन्वायरमेंटल मिटिगेशन का ख्याल रखें। मतलब दरख्तों को बहुत ज़्यादा ना काटें, या फिर एक ऐसा रास्ता ना बना लें जिसकी वजह से रहायशी और इंडस्ट्रियल के जो इलाके हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़े। तो इन्वायरमेंटल मिटिगेशन इसका मतलब होता है। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो भी डैम बनता है, जितने भी सिस्टम उसके साथ इंटीग्रेट और पैरेलल में लगे हुए होते हैं, तो उनमें एक सबसे अहम चीज़ ये है कि उनकी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो ऑपरेशन कॉस्ट कहलाती है, वो लाजमी उनमें खर्च होती है। बहुत सारे सिस्टम, मोटर्स होती हैं, बेल्ट मैकेनिज्म होते हैं जो कि इनमें काम निकलता है, तो उनकी ऑपरेशन कॉस्ट उनमें इन्वॉल्व होती है।
जो कि हमें बेयर करनी होती है। फ्यूचर डीकमीशनिंग कॉस्ट जो आपकी है, ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है कि कमीशनिंग का मतलब ये होता है कि आपको पेपर वर्क इसका करना होता है और टीम आती है बकायदा जो कि इंटरनल एक्सटर्नल के कॉम्बिनेशन में होती है। अमूमन ये जो डैम्स होते हैं ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर सुपरविजन और बावडा के अंडर सुपरविजन तकरीबन आते हैं। तो इनकी टीम्स होती हैं जो कि प्रिवेंटिव ईयरली प्रिवेंटिव वे में वो विजिट कर रही होती हैं और विजिट के दौरान वो कमीशनिंग कर रही होती है कि सिस्टम की जितनी उन्होंने कैपेसिटी रनिंग और दीगर चीज़ें बताई थी मेगावाट के ड्यूरेशन में, क्या वो कंसिस्टेंट वे में इलेक्ट्रिसिटी इससे मिल रही है या नहीं। तो ये कमीशनिंग का पूरा एक तरीका होता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है और इसमें पैरामीटर्स को मेजर करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो और इसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि जो टीम आती है उसकी भी एक गिवन कॉस्ट होती है। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से इसमें इन्वॉल्व होती है। डायरेक्ट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट्स रिलेटेड पावर, इरिगेशन, municipal and industrial water supply, flood control, navigation, recreation and fisheries, ये सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि डैम की बुनियाद पे फुलफिल होती है। तो पावर इंडस्ट्री आप जानते हैं कि जब डैम आपका इन्वेंट होगा, प्रोड्यूस करेंगे आप डैम को, तो उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो ओवरऑल आपके नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। इससे आपका जो दरियाई निज़ाम है, इरिगेशन सिस्टम है, वो बहुत बेहतर होता है क्योंकि कंसिस्टेंट आपको वाटर सप्लाई उससे मिलती है। म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, अगर इर्द गिर्द आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है तो उसको भी कैनाल सिस्टम के जरिए से लाइन देते हुए आप इनको वाटर फीड कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल, सैलाबी रेले आते हैं बहुत सारे ना, तो अगर आपके डैम बने हुए हों तो आप उनको दरियाई सिस्टम के जरिए, कैनाल सिस्टम्स के जरिए या रास्तों के जरिए से जो आप एज अ पैरल वेज ऑफ एरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत सारे इस तरह के हमारे वो होते हैं जैसे बारिश के पानी और सैलाबी रेले के लिए कुछ इलाके ऐसे रखे जाते हैं, कुछ वेज ऐसे रखे जाते हैं जिनके जरिए से वो फ्लड का जो वाटर है या फ्लड है वहाँ से गुजरता है। अब ये सारा का सारा फ्लड जो है ना, अगर आबादी में आ जाए, इंडस्ट्री में आ जाए या कमर्शियल सेक्टर्स में आ जाए तो उनके लिए मुसीबत का बायस बन जाएगा। ठीक है, तो और इससे जानी और माली नुकसान भी बहुत होता है। तो फिर अगर आपके डैम बने हुए होते हैं तो ये तमाम सैलाबी रेला जो है वो आ जाता है डैम के अंदर। ऑब्वियसली इसमें कचरा भी होता है, लेकिन ये पानी मट्टी मट्टी के अंदर ये सब वेस्टेज वगैरह बैठ जाती है और आपका पानी प्योरीफाई हो जाता है। तो आपके डैम अगर बने हुए होंगे तो वो फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित होंगे। तो इसलिए डैम का होना भी बहुत ज़रूरी है जो कि आपके बहुत ज़्यादा फ्लड को भी कंट्रोल कर सकता है, सैलाबी रेले को कंट्रोल कर सकता है। नेविगेशन इससे आपको हासिल हो जाएंगे, बहुत सारी जो टीम्स होती हैं इसमें काम कर रही होती है उससे आपको नेविगेशन हासिल होगी। रिक्रिएशन एंड फिशरीज जो आपकी है, फिशरीज की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इससे वर्ल्ड वाइड होती है। जिस तरीके से अगर आप देखें जो आपका वो है चश्मा जो डैम है आपका 148 मेगावाट का, तो उससे जो मुंसलिक इलाके हैं वो फिश इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं फिश और मार्केट को। और पंजाब साइड से मछली अक्सर व बेशतर चशनब डैम की जो मीठे पानी की मछली होती है वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और इवन मैं खुद देखी है मैंने, तो चश्मा डैम से मछलियाँ वो पकड़ते हैं बड़े जाल के अंदर और उसे सप्लाई करते हैं। इवन वहाँ से इर्द गिर्द जो है दुनिया के गांव में वहाँ पे करीब है रेलवे ट्रैक भी है। तो वो फिश जो कि वो कैच करते हैं डैम के जरिए से, उसको वो ओवरऑल कंट्री में सप्लाई करते हैं। अच्छी खासी पैकिंग की जाती है उसमें। वो पैकिंग मैंने बिल्कुल देखी भी थी किस तरीके से वो बर्फ़ के डेले होते हैं उनमें फ्रेशिंग बर्फ़ के अंदर उसको मछलियों को रखकर सप्लाई किया जाता है। और अगर आपको दूर दराज भेजना है तो फिर उसको बिल्कुल मछली की पूरी सफाई करके उसके अंदर बर्फ़ भर के फिर भेजी जाती है। और फ्रीज जो आपकी फ़िश होती है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चल के। और इससे बताने का मकसद ये कि एक फ़िश इंडस्ट्रीज है जो कि इससे इलाके बहुत ज़्यादा जो इर्द गिर्द के हैं वो फल फूल रहे हैं और इससे एक अच्छा बिजनेस भी चल रहा है। तो ये इनके बेनिफिट्स हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है, सिर्फ बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी फसलें हो गई आपकी जो, और फिर वो जिन कुछ फसलों को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, चावल की जो फसल होती है उसको खड़ा खड़ा पानी चाहिए होता है। बाकी जो आपकी जो सीड्स होती हैं, जो दालें होती हैं, बीड्स होती हैं, इनको भी आप पानी की वाफिर मिकदार रिक्वायर्ड होती है। तो आपका इरिगेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा डैम बनने के नतीजे में भी। तो डैम के ओवरऑल बहुत फायदे हैं, ना बनने से ये कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है।
अच्छा सर हमारा जो नेविगेशन का बताएं, नेविगेशन। नेविगेशन रास्तों के हवाले से होता है। नेविगेशन कहते हैं रास्तों को। जब बहते हुए पानी का जो रास्ता होता है ना, अगर आप उससे देखें तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप मैप के जरिए। अच्छा मैप और वो पानी का रास्ता बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि जो पानी का बहता हुआ रास्ता होता है वो ढलान की तरफ जाता है, ये हम जाते हैं। तो हमें लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहाड़ी सिलसिले की स्टडी होना ज़रूरी है। जैसे हमारे जो केपी के इलाके हैं पंजाब के, फिर वो डाउनवर्ड आ जाते हैं। तो वहां से आप अगर रास्ता कभी भूल जाएं और आपको पहाड़ी सिलसिले समझना और उनसे थोड़ी बहुत वाकफियत हो, तो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये इलाका कौन सा है, ऊपर की जानिब का है, पहाड़ी सिलसिला है या नीचे की जानिब जा रहा है। तो उसके इर्द गिर्द के इलाकों को आप पहचान के वहां से रास्ता तलाश कर सकते हैं। तो ये भी उसमें एक मददगार साबित हो सकता है नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनमें रास्ते चल रहे होते हैं बहते हुए दरिया के पानी में, जो कि ड्राइव हो रहा होता है। इंडस रिवर, फिर मैंने ट्रेजरी बताई थी आपको, ये इस तरीके के रास्ते होते हैं। फर्दर ये फिर शहरों में आके मिलते हैं, तो आप उसको फॉलो करते हुए भी नेविगेट होते हुए डेस्टिनी पे पहुंच सकते हैं, जो कि इर्द गिर्द के इलाके होते हैं। फर्दर कोई सवाल किसी के जहन में हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं फर्दर जवाब दे दूंगा। फर्दर आगे चलते हैं वरना यहाँ से। क्लियर है सर, गो। External impacts: environmental, social and health cost benefits, that would be an impact of positive and negative as well. So water quality impact बहुत अच्छी होती है। अगर आप का डैम और रिजर्वायर वहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आपको प्यूरिफाइड वाटर मिलता है, क्योंकि बहता हुआ जो दरिया चश्मों का पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है और उनमें कोई भी नामियाती मुरक्कबात शामिल नहीं होते। तो आपको बिल्कुल एक ताज़ा पानी मिलता है। और ताज़ा पानी की जो सही मायनों में जो केपीके के लोग हैं वो उसकी अहमियत समझते हैं, पंजाब के लोग जो है उसकी अहमियत समझते हैं। जो चश्मों का पानी होता है, जिस तरीके से मरी में पानी जो बहता हुआ आ रहा होता है ऊपर के चश्मों से और दीगर चीज़ों से, तो वो चीज़ समझते हैं वो लोग, जो कि उन्होंने देखा भी है उनको। इम्पैक्ट ऑन सर कमर्शियल। इसका इम्पैक्ट सर इसका इम्पैक्ट डैम पे तो नहीं होता ना सर, वो क्योंकि वो डैम में पानी स्टोर हो जाता है सर। जी जी, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि डैम के ऊपर पानी मुसलसल स्टोर नहीं रहता, उसमें चीजें तवातुर के हिसाब से ऊपर नीचे हो रही होती है। और डैम में पानी फ्रेश आ भी रहा होता है और डैम से पानी फ्रेश निकल भी रहा होता है। देखें, पानी ऐसा नहीं है कि हम 7 दिन रख के बैठ गए, पानी आ भी रहा है और पानी निकल भी रहा है। तो वो पानी जो वाटर है वो फ्रेश ही रहता है उसकी, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत परसेंटेज उसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाती होगी। जहाज जा रहे हैं भैया आज। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि बिल्कुल प्योरीफाई वाटर नहीं मिलेगा, बट 2 to 5% उसमें ऑलरेडी ये सब चार चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, जो कि इम्प्योरिटी का बायस जरूर बनेगी। लेकिन पानी इन हो रहा होता है और पानी आउट भी हो रहा होता है। डैम में हम पानी मुसलसल रख नहीं सकते, उसको निकलना भी होता है। जिस तरह आपका तरबेला डैम है, मंगला डैम है, वार्षिक डैम है, तो इनके अंदर ये सब चीजें फॉलो हो रही होती हैं। ठीक, तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि 12 घंटे का पानी जस्ट स्टोर जरूर रहता होगा, लेकिन जब इनकमिंग और आउटगोइंग कंटिन्यू है तो उसकी प्यूरिफिकेशन में ज्यादा फर्क नहीं आता। इम्पैक्ट्स ऑन द कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, जो सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर रिलेटेड है, आपके टम्बर रिलेटेड है एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड है और फिशरीज। अच्छा, डैम के इर्द गिर्द आपके जो उसके वो बने होते हैं कुछ हाइप इस तरह की होती है जहाँ से जानवर भी पानी पी रहे होते हैं। आपकी वाइल्ड लाइफ जो एक एनिमल्स होते हैं, जंगली हयातियात जो होती है, वो भी इससे काफ़ी हद तक बेहतर नशोनुमा हासिल करती है। फिशरीज की इंडस्ट्री का मैंने बता ही दिया है आपको। एग्रीकल्चर की फसलें होती हैं वो होती हैं। और टम्बर जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो रहे होते हैं, जो डैम से अपने फ़ायदे हासिल कर रहे होते हैं। फ्रेश वाटर है, इंडस्ट्रीज़ हैं और दीगर चीज़ें। इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड बायोवर्सैलिटी। अच्छा, इकोसिस्टम से रिलेटेड ये है कि आप अगर ये इसी तरीके से कि अगर आपने अपने बहुत सारे जानवर हैं पाले हुए हैं, उसमें बहुत सारे कैटेगरी है, बत्तख हैं, मुर्गियाँ हैं, बकरियाँ हैं और जो खच्चर किस्म के जानवर हैं, इनको भी पीने के लिए पानी चाहिए। तो ऑब्वियसली एक चीज़ होती है वो जो उसमें पढ़ाई जाती है एग्री सर्च में, क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, एक फील्ड होती है जो भैंसों गाय से रिलेटेड होती है। इस फील्ड में क्या कहते हैं भाई, ध्यान से निकल गया। कैटल कैटल फार्मिंग होती है ना सर। कैटल फार्म नहीं, उसकी एक फील्ड है जिसको स्टडी किया जाता है। कैटल फार्मिंग समथिंग डिफरेंट।
बहरहाल अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। तो बताने का मकसद ये है कि जब इनको अच्छी नशोनुमा मिलती है जानवरों को, गाय भैंसों को लेट से, तो इनकी जो ओवरऑल इकोसिस्टम है ना वो बेहतर होता है। मतलब इससे आपको मीट अच्छा मिलेगा, आपको दूध अच्छा मिलेगा, और ओवरऑल फिर इनकी नस्ल अच्छी चलेगी। तो ये इकोसिस्टम इस तरह से कहलाता है। तो पानी का बहुत इम्पैक्ट होता है। इसी तरह आप ये चीज देखें, अगर हमारे लिए लाइव स्टॉक कहते हैं उसको, अब मुझे आता है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट कहते हैं। लाइव स्टॉक रिलेटेड टू दी, जो आपके जानवर होते हैं उनकी नशोनुमा का ख्याल रखना, उसे कहते हैं लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। अच्छा, इसी तरीके से जो अगर आप सिंध की भैंस लें और पंजाब की भैंस लें, इसमें फर्क पता है किसी को? मतलब ये मैं गाय भैंसों की बातें कर रहा हूँ लेकिन पंजाब की भैंस बहुत ज्यादा अच्छी, गोश्त के दूध वगैरह सब सिंध की उसके, भैंस से तो बेहतर है। जी 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 जी, ये चीज़ आप बिल्कुल सही समझते हैं। और मैं सोच रहा था कोई ज़रूर जवाब देगा इसका। तो इकोसिस्टम इसलिए बहुत इम्पैक्ट राइज होता है उसमें, दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा एनवायरनमेंट और वाटर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत अपनी रखती हैं। इम्पैक्ट्स ऑन एमिशंस ऑफ पोल्यूटेंट्स, इम्पैक्ट ऑन वाटर बर्न, डिजीज रिस्क। और इस तरह का पानी अगर आपको ना मिले तो ऑब्वियसली, अगर फ्रेश वाटर आपको नहीं मिलता कनाल सिस्टम डैम के जरिए से बहता हुआ पानी जो कि उससे होता हुआ आता है, तो फिर आपको बहुत सारी जो बीमारी व खतरे वो लायक हो सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑन द कल्चरल हिस्टोरिक साइट्स। अच्छा, फिर इनसे जो है वो भी होती है, जो टूरिज्म है वो बहुत अच्छा होता है। जिस तरीके से जो हब डैम है वो लोग देखने जाते हैं, जो तरबेला डैम, मंगला डैम, इन पे सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी की बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इनमें दहशतगर्दी का खतरा भी होता है। लेकिन ये टूरिज्म की साइट बहुत अच्छी है, जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो टूरिज्म बहुत अच्छा रखते हैं, और कल्चरल आइडेंटिफिकेशन आपकी इससे होती है। और लोग इस पे बहुत फख्र भी करते हैं कि जी हमारे इलाके में डैम है। लोग बुलाते हैं और फिर उसको बताते हैं, दिखाते हैं। जिस तरह मुझे लेके गए थे मेरे रिलेटिव अपना चश्मा डैम दिखाने के लिए, चश्मा पावर प्लांट। तो फर्दर ये सब बातें हम कंटिन्यू करते हैं। सोशल कोहेशन, एक्सेस टू सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये सारे वो इम्पैक्ट हैं जो डैम के नतीजे में हासिल हो रहे होते हैं। अच्छा जी, फर्दर मुझे एक रिपोर्ट शेयर करनी है आप लोगों को उसके बाद, तो हम उस पे आएंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी अगर आपके जहन में हो तो डिस्कस कर लीजिए। आई विल आंसर द काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड रिजॉल्व योर क्यूरीज इफ यू हैव इन योर माइंड। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। Further, we are coming towards the hydropower station related to the reports. अच्छा जी, अब इस रिपोर्ट में मैं शेयर कर दूंगा, वैसे ऑलरेडी मैं सारे लेक्चर्स शेयर कर चुका हूँ ड्राइव के जरिए से ही। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है, अ गाइड फॉर डेवलपमेंट्स एंड इन्वेस्टर्स, तो उनके लिए एक रिपोर्ट है जिसके बिहाफ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। और डैम के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होना ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव समरी, हम इसका एक ओवरव्यू कर रहे हैं क्योंकि ये पेजेस तो इसके 120 हैं, हम पढ़ने में ही पूरा टाइम लग जाएगा। तो हम जैसे एक ओवरव्यू सा कर रहे हैं ताकि आप रिपोर्ट से एक उनसियत हासिल कर लें। रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्रियल लेवल की या एक रिसर्च रिपोर्ट से आप किस तरह डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू के लिहाज से मैं ये आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव समरी होती है related to the worldwide hydropower station of the crucial power supply option for several reasons, कि जिसकी बुनियाद पर आप डिसाइड करते हैं कि डैम कहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए। आपको पता है जैसे जो हमारे डैम बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के फंड से रिलेटेड, जो मोहम्मद डैम है आपका या मीरवाशा डैम है, इनमें एक थ्रेटनिंग इशू ये है कि जो वापडा को बार बार हाईलाइट करके बताया गया है कि जिन इलाकों में ये डैम बना है वहां पर जलजले बहुत ज्यादा आते हैं। एक जलजला अगर आ गया डैम बनने के बाद तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका सीमेंट कंक्रीट बिल्कुल वन पीस में होता है। इंटीग्रेटेड पीस भी होते हैं लेकिन एक दरार, क्योंकि जलजले के नतीजे में आप जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी मूव करती हैं। व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूव,
these surfaces would be unweighed, तो इतना बड़ा शिगाफ पड़ सकता है या उतना नुकसान हो सकता है, सारा पानी नीचे चला जाएगा लेट से। तो ये एक इशू है जो कि वापडा ने एक रिस्क लेते हुए और इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस ना करते हुए वो डैम बनना अलाउ भी कर दिया। अब ये हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ज़लज़ला प्रूफ भी होते हैं, लेकिन इन चीज़ों से ज़लज़ले को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बड़ा चैलेंज भी है आने वाले फ्यूचर में। अच्छा, तो इसके बिहाफ पे जो टेक्नीशियंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि अगर आपको डैम बनाना ही है ना तो छोटे डैम बना लें, बड़े डैम ना बनाएं, क्योंकि एक बड़ा डैम अगर नुकसान का बाइस बन गया तो उससे वो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, रिजर्वायर में ही दरार आ जाएगी ना, वो लीक कर देगा नीचे से, अड़ोस पड़ोस बराबर बराबर कहीं से भी लीक कर देगा लेट से, अगर एक जलजला आ गया उसमें। अब मसला ये है कि हमारे ये इलाके हैं पहाड़ी इलाकों में, केपी की साइड पे ये डैम है जो बनेंगे, तो इन इलाकों में जलजले ज़्यादा आते हैं जो पहाड़ी और ऊंचाई के इलाकों में होते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा खतरा यही लाक होता है कि डैम के नतीजे में ये नुकसान ना हो जाए। छोटे डैम बनने तो से सर ये सबसे ज्यादा बेहतर तो सर फिर ये नहीं है कि बहते हुए पानी में ही पाकिस्तान इन्वेस्ट करे ज्यादा? रन ऑफ द रिवर बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वापडा की स्टडी के मुताबिक उन्होंने ये सोचते हुए ही इन्वेस्टमेंट की है इसमें। बगैर रिसर्च और डेवलपमेंट के ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो उन्होंने कुछ ना कुछ रिसर्च इसमें की है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी अपनी राय देते हैं कि इतना बड़ा डैम एक ही वक्त में एक ही डैम बनना, या वैसे तो दो डैम बन रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। बनस्बत इसके कि आप 5 डैम बनाते हैं उन्हीं उसी कॉस्ट में छोटे छोटे, तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि छोटे लेवल के डैम बनाकर उसे एक्सटेंड करना आसान है। बड़े डैम में एक्सटेंशन भी हो सकती है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट एक बड़े डैम के मुकाबले में छोटे में कम चाहिए होती है। तो ये बहुत सारे डिस्कशंस हैं जिनको मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अच्छा, हम एग्जीक्यूटिव समरी में बात कर रहे थे, उसके साथ साथ ये ओवरव्यूज होते हैं, उसमें फिर फर्दर इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन अबाउट द डैम, इंट्रोडक्शन अबाउट द वाटर क्वालिटी एंड द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी के कहाँ पे आप डैम को बनाना चाह रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि हाइड्रो पावर डेवलपमेंट क्या चीज़ है और उसको लगाना क्यों ज़रूरी है। सबसे अहम चीज़ ये कि इसका कोई एनवायरमेंटल लॉस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है जस्ट पानी से, कोई कार्बन एमिशन नहीं है, रिसोर्स को जलाया नहीं जाएगा, आपको कोयला इंपोर्ट नहीं करना होगा, और इसका जो वेस्टेज ऐश की सूरत में होगा उसे ठिकाने नहीं लगाना होगा। जस्ट पानी आ रहा है, प्रोड्यूस कर इलेक्ट्रिसिटी और पानी जा रहा है, ठीक है, पानी में से बिजली ले रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ तो सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको ये तो एक खतरा नहीं है ना कि पानी में से बिजली निकल गई तो ऐसे पानी का फायदा क्या, ये तो कोई नहीं सोच रहा है ना। एक वजीर था, मैंने सुना था, पाकिस्तान का एक वजीर था, वो डैम के ऊपर जनरेशन लगाई ना, जी तो लगाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन जैसे ही जनरेशन ने काम शुरू किया तो गांव के कुछ लोगों ने बोल दिया हमारी फसलों को जो पानी मिलेगा इसमें से बिजली तो निकल गई, एनर्जी निकल गई, यानी हमारी फसलों को अब पानी जो मिलेगा वो बेकार पानी है। ऐसा भी है सर पाकिस्तान में। जी जी, ये भी है, इसीलिए लोगों को कहा जाता है अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और शऊर दो, तो वो इस तरह की सोच नहीं रखेंगे। इसीलिए भाई हम सबको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और इर्द गिर्द के लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए, वरना इसका बड़ा नुकसान एक बड़े इलाके से लेके बड़ी कौमियत तक पहुंच जाता है। अच्छा जी, फर्दर इसमें चैप्टर्स हैं जो कि हमने ओवरव्यू कर रहे हैं। चैप्टर 3 एक हो गया, उसमें फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे लगानी होती है कि वाटर क्वालिटी और टाइम के लिहाज से जो है वो किस तरीके से बेहतर रहती है, आप उस तरह किस तरह को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया जाता है रिपोर्ट्स में, और डिज़ाइन एंड टिपिकल लेआउट्स जो आपके होते हैं, किस तरह का डिज़ाइन रखेंगे आप। दूसरी बात, इस पूरे लेक्चर जो कि प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि टरबाइन किस लेवल की होगी, आप जो रिजर्वायर अपना लगाएंगे उसमें पिन स्ट्रोक कैसा होगा। पिन स्ट्रोक इसे कहते हैं जो बहते हुए से पानी इस तरह इंक्लाइन वे में आता है। रिजर्वायर किस नेचर का होगा और उसका प्रेशर किस तरह रखा जाएगा, गेट्स कितनी सिमेट्री के होंगे,
और रिमेनिंग वाटर किस तरह से नीचे रखा जाएगा, और उसके बाद फर्दर क्या अनदर साइक्लिक ऑफ डैम प्रोड्यूस होगा या नहीं। तो ये सब चीज़ें भी डिज़ाइन एंड टिपिकल लेआउट्स में बताए जाते हैं। तो उनके लेआउट्स बनते हैं, इनकी बाकायदा पूरे प्लान्स होते हैं जो कि इंचेस और फिट्स के मुताबिक इनकी मेजरमेंट में किए जाते हैं। उसके बाद इनकी साइड व्यू होते हैं, इनके टॉप व्यू की एनालिसिस किया जाता है कि वो किस तरीके से होगा। ये हुअर डैम है, हुअर डैम के बारे में आपको पता होगा, ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम के अंदर आता है। विकीपीडिया से ये इमेज ली गई है जो कि 2080 मेगावाट का है। जैसे यहाँ लिखा भी है हुअर डैम ऑन दी कोलोरेडा रिवर, यूएसए के अंदर है। और ये जो डैम है ये रन ऑफ द रिवर के